Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of MBA 3.5 second semester. Course title is Economic Analysis. In the last lecture, we have discussed the perfect competition, price and output determination under perfect competition, and monopoly, price and output determination under monopoly. Today we are going to discuss the next market structure, which is monopolistic competition, price and output determination or equilibrium of the firm under monopolistic competition. Monopolistic competition is characterized by a relatively large number of sellers, differentiated products, often promoted by heavy advertising, and easy entry and exit from the industry. We can explain it in a detail. Here you can see that these are the characteristics of monopolistic competition, or you can say that these are the assumptions of monopolistic competition, or you can say that this is a definition of even monopolistic competition. आप इन्हीं characteristics के ज़रिए ही monopolistic competition को हम define करते हैं. Relatively large number of sellers. First characteristics of monopolistic competition is relatively large number of sellers. First characteristics of monopolistic competition is relatively large number of sellers. एज़ कम्पेयर टू मोनोपली आप देख सकते हैं वहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है. यहाँ पे relatively large number of sellers हैं which has limited control over the market price. No collusion. Collusion means no agreement, no hidden or written agreement. No collusion. जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके आपस में कोई कोलिजन नहीं है. नो रिटन, नो ओरल एग्रीमेंट. नो इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस नहीं है. ओनली इंडिपेंडेंट एक्शन. हर फर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है. डिफ्रेंशिएटेड. सेकंड मेजर असम्पशन इज़ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट जो सेल हो रही हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हैं. इसको आप देखें, कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस जो हमने डिस्कस किए हैं. तो मोनोपली में जो प्रोडक्ट थी उस डैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स थी वो थी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. और यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंस इन ब्रांड नेम्स एंड पैकिंग, सम कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल, दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट. ठीक है, बट नॉट होमोजीनियस. यही इसकी डिफ्रेंशिएटेड की पहचान है कि दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बट नॉट होमोजीनियस. सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का बट होमोजीनियस नहीं है, एक जैसे नहीं है. फॉर एग्जांपल, आप टूथपेस्ट के डिफरेंट ब्रांड्स देखते हैं, सारे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है. घर में मेहमान आए, उसने कभी कहा है कि मैं फ़लाँ टूथपेस्ट नहीं करनी, मुझे फ़लाँ ला के दो. नहीं. ठीक है, तमाम टूथपेस्ट एक जैसी हैं. तमाम टूथपेस्ट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है बट नॉट होमोजीनियस, एक जैसी नहीं है. उनमें क्वालिटी का डिफरेंस है, उनमें टेस्ट का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, उनमें पैकिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस है. ऐसी है ना. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. एंड इजी एंट्री एंड एग्जिट मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. How the firm will be in equilibrium? The price and output determination under monopolistic competition. There are two conditions for firm equilibrium as we have studied in the previous two market structures. First one is that marginal revenue is equal to marginal cost. Marginal revenue must be equal to marginal cost. And second condition is that slope of marginal cost must be greater than the slope of marginal revenue. So these are the two conditions. First one is necessary condition and second one is sufficient condition. Firm's demand curve.
द डिमांड कर्व फेस्ड बाय मोनोपोलिस्टिकली competitive seller is highly but not perfectly इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होता लेकिन हाईली इलास्टिक होता है ज़रूर। डिमांड कर्व जैसा कि आप देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक था, अगर आपको याद हो। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक था, जबकि आप मोनोपोली में देख सकते हैं डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड था है, ठीक है, ऐसी है ना, थोड़ा स्टीपर शेप में था। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होता लेकिन हाईली इलास्टिक ज़रूर होता है, मीन्स फ्लैटर शेप में होता है। इट इज़ precisely दिस फीचर दैट डिस्टिंग्विश मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्रॉम प्योर मोनोपोली। बेसिकली ये मोनोपोली से डिफ्रेंशिएट करने के लिए द मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर डिमांड्स इज मोर इलास्टिक दैन द डिमांड फेस्ड बाय प्योर मोनोपोलिस्ट। क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है इसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली में। क्यों? क्योंकि मोनोपोली में जो कमोडिटी सेल हो रही होती है उसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कमोडिटी सेल हो रही होती हैं तो उनके तो सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं। डेट्स वाई जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो फ्लैटर शेप में है, मतलब मोर इलास्टिक है, जबकि जो डिमांड कर्व है मोनोपोली में वो लेस इलास्टिक है, इन इलास्टिक शेप में है वो। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। डेट्स वाई जो है डिमांड कर्व इसका ज़्यादा स्टीपर फ्लैटर होगा। आप डायग्राम में मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे यही लिखा है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। द मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर्स डिमांड इज़ मोर इलास्टिक दैन द डिमांड फेस्ड बाय प्योर मोनोपोलिस्ट बिकॉज द मोनोपोलिस्टिकली competitive seller has many competitors producing close substitutable goods. The pure monopolist has no rivals at all। ठीक है, जबकि जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका कोई कंपटीटर भी नहीं होता और उसकी गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहा होता है उसका सब्सिट्यूट भी नहीं होता। डेट्स वाई जो उसका डिमांड कर रहा है मोनोपोलिस्ट का वो स्टीपर शेप में होता है, जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर शेप में या मोर इलास्टिक शेप में होता है। Yet, for two reasons, the monopolistic competitor's demand is not perfectly elastic like that of pure competition. First, the monopolistic competitor has few rivals. Second, its products are differentiated, so they are not perfect substitute. अब हम इसको परफेक्ट कंपटीशन के साथ देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह इसका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं होता, तो अब वो हम देखेंगे। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस होती है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस नहीं है बल्कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। दूसरा ये कि परफेक्ट कंपटीशन में जो उसके मुकाबले पे फर्म्स होती हैं वो लातादाद होती हैं, जबकि इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है वो फ्यूर फर्म्स होती हैं जिसके कंपटीशन पे होती हैं। सो डेट्स वाई जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आप कह सकते हैं कि डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, इसके डिमांड कर्व को डिफरेंशिएट किया है परफेक्ट कंपटीशन के डिमांड कर्व के साथ भी, और डिमांड कर्व को डिफरेंशिएट किया है मोनोपोली के डिमांड कर्व के साथ भी कि क्यों उनसे डिफ़र है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। शॉर्ट रन में ऑब्वियसली प्रॉफिट को भी फेस करना पड़ सकता है और लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। ज़ाहिर है अगर बाद का न्यू एंट्री फर्म होती है उसको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। बाद का मतलब मुख्तलिफ इसकी सूरत हाल हैं, तो हम वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है हमें। तो मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से प्रॉफिट लॉस जो है वो फेस करना पड़ सकता है शॉर्ट रन में। तो हम पहले शॉर्ट रन की डायग्राम ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिमांड कर्व which is also equal to average revenue and also equal to price level। remember डिमांड हमने रेवेन्यू कर्व ड्रा किए थे, तो वहाँ पे देखा था जो डिमांड कर्व है which is equal to the average revenue and equal to the price level as well। however margin revenue curve is below than the average revenue curve। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड कर्व इज़
relatively more elastic than in the मोनोपली। जो आपने मोनोपली में स्टडी किया था उसकी निस्बत यहाँ पे जो डिमांड कर्व है रिलेटिवली मोर इलास्टिक है, एंड डेट्स वाई इसकी शेप देखें आप फ्लैटर शेप में है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें और मोनोपली में भी। डिमांड कर्व में आप देख सकते हैं डायग्राम के लिहाज से आप देखें इक्विलिब्रियम ड्रा किया गया है। देन एवरेज टोटल जहाँ पे मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम ड्रा किया गया है। और देन आपने एवरेज टोटल कॉस्ट देखें, शॉर्ट रन प्रॉफिट की कंडीशन है एवरेज टोटल कॉस्ट मस्ट बी लेसर देन द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज टोटल कॉस्ट मस्ट बी लेसर देन द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो D1 जो है, ठीक है, डेट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड इक्वल टू प्राइस लेवल। ये डिमांड कर्व जो है ये एवरेज रेवेन्यू भी यही है, प्राइस लेवल भी यही है। तो आप देखेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो कि यू शेप है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे ड्रा किया गया है। नीचे इसलिए ड्रा किया गया है प्रॉफिट बताने के लिए, ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट की क्या कंडीशन है, एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे है, तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन शेडेड जो बन गया है ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो ये पूरा ये जो स्केयर था OQ1 से लेकर आप देख सकते हैं P1 तक ये टोटल रेवेन्यू था, जबकि ये कॉस्ट रेड कर यहाँ पे कट किया है तो ये नीचे वाली कॉस्ट हो जाएगी और ये ग्रीन वाला जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट बन जाएगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह आपके सामने ये देखें शॉर्ट रन लॉस भी शोर किया गया है। शॉर्ट रन लॉस में क्या हुआ है, एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अब कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर गई है एवरेज रेवेन्यू से, कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर गई है एवरेज रेवेन्यू से। आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये रेवेन्यू थे और ये कॉस्ट ज़्यादा हो गई है। ये जो रेड शेडेड एरिया है ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ हायर देन द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये जो D2 डिमांड लिखा हुआ है विच इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू आल्सो इक्वल टू द प्राइस लेवल, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं उससे अबव है, तो ये उससे अबव वाला शेडेड एरिया जो है वो आपको लॉस को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये लॉस की सिचुएशन है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियसली जो अगर कोई फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ये जो प्रॉफिट होता है ना हम इसे एबनॉर्मल प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिहाज से ये एबनॉर्मल है। इकोनॉमिक्स के लिहाज से नॉर्मल वो होगा जिसमें ज़ीरो प्रॉफिट हो। मैं पहले इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे आप देखें कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी फर्म्स उनके कंपटीशन पे और फर्म्स आ जाएंगी। जो नॉर्मल लॉस में चल रही होंगी तो वो लंबे अरसे तक नॉर्मल लॉस में नहीं चल सकती, तो वो भी नॉर्मल प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाएंगी, मूव हो जाएंगी, अदरवाइज़ इंडस्ट्री छोड़ जाएंगी। या तो अपनी हालत इंप्रूव करके नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, अदरवाइज़ इंडस्ट्री छोड़ देंगी। तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक डायग्राम बनेगी विच इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में सिर्फ वही फर्म सर्वाइव कर सकती है जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। उस केस में आप देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हों वहाँ पे जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों पूरी हो रही होती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। आप मज़ीद जो है वो स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनर, ब्रू एंड फ्लाइन, चैप्टर नंबर 11 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, और यू कैन आल्सो डिस्कस इट विद मी ड्यूरिंग लाइव सेशन ऑन जूम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।